یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل القادری. پہلے ہیڈ لائنز. اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کام مکمل. جانچ پڑتال کے بعد 17 ستمبر تک لیے جا سکتے ہیں نام واپس. پہلے مرحلے کی چناو مہم مزید تیز. چوٹی کے مہم سازوں کا مختلف علاقوں میں چناو جلسوں اور ریلیوں کا انعقاد. جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا احسن انعقاد یقینی بنانے کے لیے انتظامی سطح پر تیاریوں کو دی جا رہی ہے حتمی شکل. سویپ سرگرمیاں بھی لگاتار جاری. اور وادی میں قومی اور بین الاقوامی کرکٹ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کی راہ ہموار. سری نگر میں 9 اکتوبر سے لیجنڈز لیگ کرکٹ کے تحت فائنل سمیت کھیلے جائیں گے 8 میچز. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. تیسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج پورا ہو گیا. بارہمولہ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ضلع کی 7 اسمبلی نشستوں کے لیے 111 امیدواروں نے 116 نامزدگیاں داخل کی ہیں. کپواڑہ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ضلع کی 6 اسمبلی نشستوں کے لیے کل 85 نامزدگیاں داخل کی گئی ہیں. بانڈی پورہ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ضلع کی 3 اسمبلی نشستوں کے لیے 50 نامزدگیاں داخل کی گئی ہیں. ان کاغذات کی جانچ پڑتال کل ہوگی اور امیدوار 17 ستمبر تک اپنے نام واپس لے سکتے ہیں. تیسرے اور حتمی مرحلے کے تحت یوٹی کے 40 حلقوں میں 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے. ان میں کپواڑہ کی 6، بارہمولہ کی 7، بانڈی پورہ کی 3، ادھمپور کی 4، کٹھوعہ کی 6، سانبا کی 3 اور جموں ضلع کی 11 اسمبلی نشستیں شامل ہیں. ووٹنگ کا عمل صبح 7 بجے شروع ہوگا اور یہ شام 6 بجے تک جاری رہے گا. سبھی مرحلوں کے تحت ڈالے جانے والے ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو عمل میں لائی جائے گی. جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے چناؤ میں اب صرف چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں. مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں اور آزاد امیدواروں نے اپنی اپنی چناؤ مہم میں مزید تیزی لائی ہے اور یہ امیدوار رائے دہندگان کو ان کے حق میں ووٹ دینے کی زبردست تلقین کر رہے ہیں اور ان کے سامنے منشور کے نکات رکھ کر انہیں راغب کرنے کی جی توڑ کوششیں کر رہے ہیں. واضح رہے کہ اس مرحلے کے تحت یوٹی کے 24 اسمبلی حلقوں میں 18 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے. ان حلقوں میں کشمیر صوبے کی 16 اور جموں صوبے کی 8 نشستیں شامل ہیں. مرحلے کے تحت 23,27,000 ووٹر 219 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے جن میں کئی سابق وزراء اور ممبران اسمبلی بھی شامل ہیں. یوٹی میں 3 مرحلوں کے تحت ہونے والے اسمبلی انتخابات کے احسن پرامن اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتظامی سطح پر تمام کوششیں جاری ہیں. ایک طرف مختلف علاقوں میں ہوم ووٹنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کے تحت معمر افراد کے ساتھ ساتھ جسمانی طور خاص ووٹروں کو گھر بیٹھے ہی ووٹ دینے کی سہولت دستیاب ہے. دوسری جانب چناؤ ڈیوٹی پر مامور عملے کو چناؤ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تربیت سے ہمکنار کیا جا رہا ہے اور سلامتی انتظامات سمیت تمام اقدامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. آنے والے اسمبلی انتخابات میں رائے دہندگان کی بڑھ چڑھ کر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ان دنوں مختلف ضلعوں میں سویپ کے تحت اختراعی پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے. ان بیداری پروگراموں کے دوران رائے دہندگان بالخصوص پہلی مرتبہ اپنے آئینی حق کا استعمال کرنے والوں میں ووٹ کی اہمیت کے تعلق سے بیداری پیدا کی جاتی ہے. اس سلسلے کی ایک کڑی کے تحت آج راج باغ میں دریائے جہلم کے کنارے سویپ سری نگر کی طرف سے ایک بڑے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کافی تعداد میں مختلف اسکولوں کے طلباء نے شرکت کی. اسکولی بچوں نے موسیقی، مصوری مباحثوں، تقریروں اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے سے جمہوری عمل بالخصوص ووٹ کی طاقت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا. انہوں نے منفرد انداز میں اپنے ساتھیوں اور وہاں موجود دیگر ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ آنے والے انتخابات میں اچھی خاصی تعداد میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں تاکہ جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کیا جا سکے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج بارہمولہ اور کنڈی سے آئے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے یوٹی کے غریب عوام کو راحت پہنچانے کے لیے اپنا منشور تیار کیا ہے. انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ زمینی سطح پر لوگوں کے ساتھ جڑ کر اس منشور کو گھر گھر تک پہنچائیں. انہوں نے کہا کہ پارٹی ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے کام کرتی رہے گی. اس موقع پر کئی شخصیات نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی. فاروق عبداللہ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آنے والے اسمبلی انتخابات کے دوران قابل اور ایماندار امیدواروں کو اپنا ووٹ دیں. دریں اثنا پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج ڈوڈا ایسٹ حلقے میں ایک چناؤ جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ کئی سیاسی جماعتیں لوگوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے پر تلی ہوئی ہیں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ایسی پارٹیوں سے خبردار رہیں. انہوں نے بی جے پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اس پارٹی نے پچھلے 10 برس کے دوران لوگوں کی راحت رسانی کے لیے کیا کام کیے.
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज किरबल अनंतनाग में एक चुनावी जलसे से खिताब किया और अपने पार्टी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान वीरी के हक में चुनाव मुहिम चलाई। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात और जज्बात को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी लोगों की असल तर्जुमान है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लोग उनकी पार्टी को भारी अक्सरियत से जीत दिलाएंगे। पार्टी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान वीरी ने भी इस जलसे से खिताब किया। PDF के चेयरमैन और खान साहब हल्के के पार्टी उम्मीदवार हकीम मोहम्मद यासीन ने आज पारनिवा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक की पासदारी के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने पारनिवा फ्रूट मंडी को जदीद कारी से हमकिनार करने पर जोर दिया ताकि इलाके में मेवा सन्नत को फरोग मिल सके। बड़गाम जिले में भी चुनावी सरगर्मियां हर गुजरते दिन के साथ साथ तेज हो रही है। ये जिला 5 असम्बली नशस्तों पर मुश्तमिल है। इन हलकों में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 25 सितंबर को वोट डाले जा रहे हैं। जिले के चुनावी मंजरनामे के हवाले से पेश है हमारे नुमाइंदे की ये तफसीली रिपोर्ट। बडगाम जिले में असम्बली हलकों की कुल तादाद 5 है, जिनमें बडगाम, बीरवा, खान साहब, चरारी शरीफ और चाडोरा शामिल हैं। जिले में वोटरान की कुल तादाद 5,09,615 है, जिनमें 2,58,691 मर्द वोटरान और 2,50,911 खवातीन वोटरान शामिल हैं, जिनकी खातिर 639 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। जिले के सभी 5 असम्बली हलकों में एक खातून उम्मीदवार समेत कुल 46 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। बडगाम जिले के सभी असम्बली हलकों में हर गुजरते रोज चुनावी सरगर्मियों में तेजी आ रही है और सभी पार्टियां और उम्मीदवार वोटरान को अपनी ओर रागिब करने की जी तोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं। जिले में जनरल ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स और पुलिस ऑब्जर्वर ने एक मुश्तरका मीटिंग में इलेक्शन तैयारियों के हवाले से जायजा लिया, जिसमें जिले के इलेक्शन अफसरान और SSP बडगाम ने शिरकत की। मीटिंग में इलेक्शन अफसरान को हिदायत दी गई कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती के साथ अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मीटिंग में जिले के सभी 5 असम्बली हलकों के रिटर्निंग अफसरान और नोडल अफसरान ने इलेक्शन इंतजामात के हवाले से तफसील फराहम की। इधर कल जिले के सभी असम्बली हलकों के लिए जनरल ऑब्जर्वर्स की निगरानी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की रैंडमाइजेशन अंजाम दी गई, जबकि स्वीप के तहत वोटरान की खातिर बेदारी कैंप भी मुनक्कद किए जा रहे हैं। बडगाम जिले में इलेक्शन रैलियों में लोगों की जोश जज्बे से शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि इस बार असेंबली इंतखाबात में रिवायत से हटकर लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे वोटिंग की रिकॉर्ड शरह दर्ज होने की उम्मीद है। ताहम किस पार्टी या उम्मीदवार के सर सहरा बनेगा, इसके लिए फिलहाल इलेक्शन नताइज की तारीख का इंतजार करना होगा। खबरों के लिए बडगाम से मैं शौकत शाह। बारामूला जिले में भी चुनाव तैयारियां शदुमत से जारी हैं। जिले की 7 असम्बली नशस्तों पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इन हलकों में राय दहिंदगान की कुल तादाद 7,22,923 है, जिनमें 3,64,517 मर्द और 3,58,394 ख्वातीन वोटर शामिल हैं। चुनाव कमीशन ने जिला भर में वोटरों की सहूलत के लिए 908 पोलिंग मराकज कायम किए हैं। इनमें पिंक पोलिंग स्टेशन, यूथ पोलिंग स्टेशन, ग्रीन पोलिंग स्टेशन, मुनफरिद पोलिंग स्टेशन और मिसाली पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद से मुतल्लिक नई दिल्ली के एक ट्रिब्यूनल ने सिक्स फॉर जस्टिस नामी एक तंजीम को गैर कानूनी करार दिया है। इस सिलसिले में मज़कूरा ट्रिब्यूनल की जानिब से 8 जुलाई 2024 को जारी एक नोटिफिकेशन की रूह से इस तंजीम की सरगर्मियों पर अगले 5 वर्षों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। ट्राइब्यूनल ने सिक्स फॉर जस्टिस नामी इस तंजीम के लिए एक वजह बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें तंजीम को 30 रोज के अंदर अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा गया है। सिक्स फॉर जस्टिस अपने उजरात, जवाब या सफाई तहरीरी सूरत में चैम्बर नंबर 15 ग्राउंड फ्लोर ए ब्लॉक, दिल्ली हाई कोर्ट, शेरशाह रोड, नई दिल्ली के पते पर इरसाल कर सकते हैं। तंजीम के जोमा से कहा गया है कि वो मामले की मजीद कार्रवाई के लिए मज़कूरा बाला कोर्ट में 26 सितंबर 2024 को दोपहर 2:30 बजे ज़ाती तौर या बजरिए वकील पेश हो सकते हैं।
चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में BSNL के 4G नेटवर्क को सैचुरेट करने के लिए तमाम मुतल्लिकीन को बाहमी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी है। आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुतल्लिका महकमों के अफसरों की एक मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने भारत नेट पर काम की रफ्तार का पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने BSNL की 4G कनेक्टिविटी को आम करने में हायल रुकावटों की निशानदेही करके उन्हें फौरी तौर पर हल करने की तलकीन की। उन्होंने BSNL को हिदायत दी कि वो उसे सौंपी गई तमाम साइट्स पर किसी ताखीर के बगैर जल्द से जल्द काम मुकम्मल करना चाहिए। मीटिंग में BSNL के चीफ जनरल मैनेजर ने जानकारी दी कि पहले 2 मरहलों में अब तक जम्मू कश्मीर में 1119 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। श्रीनगर में लेजेंड्स लीग क्रिकेट के तहत 9 अक्टूबर से लीग के फाइनल मैच समेत 8 मैच खेले जाएंगे और यूं एक तवील अरसे के बाद वादी में कौमी और बैन अक़वामी क्रिकेट का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीग के मुंतज़मीन ने कहा कि इस साल का लेजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 9 सितंबर को बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर से शुरू होगा। क्रिकेट से रिटायर हुए खिलाड़ियों के इस लीग के तहत इसके बाद सूरत में 6 और जम्मू में 6 मैच खेले जाएंगे। लीग का फाइनल मैच 16 अक्टूबर को श्रीनगर में खेला जाएगा। श्रीनगर में खेले जाने वाले तमाम मैच बख्शी स्टेडियम में खेले जाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारूफ क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के अलावा लीग के को फाउंडर रमन रहेजा, नमन ओझा और आबिद नबी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लीग की सभी 6 टीमें श्रीनगर में अपने मैच खेलेंगी। उन्होंने कहा कि लीग के दौरान शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, क्रिस गेल, रॉस टेलर और एयन बेल समेत कई खिलाड़ी ग्राउंड में नजर आएंगे। बावर किया जाता है कि कश्मीर में कौमी और बैन अक़वामी सतह के खिलाड़ियों की क्रिकेट मैचों में शिरकत से यहां की साख को बेहतर बनाने और सयाहती मंजरनामे को तक़वियत देने में मदद मिलेगी। CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी का तवील अलालत के बाद आज इंतकाल हो गया है। वो 72 बरस के थे। 72 बरस की उम्र के इस बुजुर्ग रहनुमा ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में आखिरी सांस ली। वो पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सीताराम येचूरी के फौत होने पर दुख का इजहार किया है और गमजदा खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया है। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी मरहूम लीडर के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने भी उनके फौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस ताशीर अवस्थान ने आज पुलवामा जिले में कई अदालती यूनिटों का दौरा किया। उन्होंने जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा में नए NDPS कोर्ट, डिस्पेंसरी और सिक्योरिटी रूम का इफ्तिताह करने के अलावा एक निजी स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस ने अदलिया से वाबस्ता अमले से बिलमुशाफा मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। उनके हमरा जस्टिस रजनीश ओसवाल और रजिस्ट्रार जनरल भी थे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।